غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرینا ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ جوانی ڈال گئی تھی لیکن اس کے دراز قد اور چہرے کے نقش و نگار میں ابھی جاذبیت اور کشش باقی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سراب بھی دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ وہ کوئی عام سی یا کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ اس کا شمار شاہی محل کی بیگمات میں ہوتا تھا۔ وہ راڈرک کی بیوی نہیں داشتہ تھی اور یہ واحد داشتہ تھی جو ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود ابھی محل میں موجود تھی۔ محل میں جو داشتہ 30 سال کے قریب پہنچ جاتی تھی اسے غائب کر دیا جاتا یا انعام کے طور پر فوج کے کسی اعلیٰ افسر کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ میرینا یہودن تھی۔ یہودیوں کی فطرت کے عین مطابق اس کا ذہن بھی سازشی تھا۔ ایک تو وہ عورت تھی اور عورت بھی حسین و جمیل، اور اس کے ساتھ ذہنیت اور ذہانت یہودی۔ اس اوصاف اور حصال کی بدولت اس نے محل میں خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ وہ شاہی حرم کی ملکہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں اور زبان میں جادو تھا جس سے راڈرک بھی نہیں بچ سکا تھا۔ اس زمانے میں اندلس کے دارالحکومت تولیتا میں شاہی محل سے 1.5 میل دور ایک جھیل ہوا کرتی تھی جس کے ارد گرد گھنے درخت تھے اور ایک طرف ایک ٹیکری تھی جو ایک درختوں اور ہری بھری جھاڑیوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ اس جھیل کے قریب کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس سے شاہی محل کی عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ شام کے وقت عورتیں وہاں تیراکی اور ناچنے کودنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ایک شام جب سورج لب و بام تھا، جھیل پر 25-30 عورتیں جھیل میں کودتی تیرتی ایک دوسری کے پیچھے بھاگتی اور کہکے لگا رہی تھیں۔ ان میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں اور جوان عورتیں بھی۔ یہی وہاں کا معمول تھا۔ اس معمول کی نگران میرینا ہوا کرتی تھی۔ اس شام بھی میرینا وہاں موجود نگرانی کر رہی تھی۔ جھیل سے کچھ دور درختوں کی اوٹ میں ان عورتوں کی بگیاں کھڑی تھیں جن کے کوچوان مرد تھے۔ ان میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک آدمی ان حدود کے اندر آ گیا ہے جس کے قریب آنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ کوچوانوں نے اسے اشارے کیے کہ وہ آگے نہ آئے اور پرے چلا جائے، لیکن وہ آگے ہی آگے بڑھتا آیا۔ کوچوان اسے روکنے کے لیے اٹھے تو اس نے راستہ بدل لیا، لیکن اس کا رخ جھیل کی طرف تھا۔ اس تک پہنچتے پہنچتے وہ جھیل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوچوانوں نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا۔ اس نے اپنے منہ اور سر پر چادر لپیٹی ہوئی تھی، صرف آنکھیں ننگی تھیں۔ اس نے لمبا چگا پہن رکھا تھا جو پاؤں تک چلا گیا تھا۔ یہ بوری کا بنا ہوا تھا۔ اسے کوچوانوں نے پکڑا تو اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ جھیل میں تیرتی اور اچھل کود کرتی عورتوں نے ایسی چیخیں سنی جو کسی جانور کی تکلیف کے وقت کی آوازوں سے ملتی جلتی تھیں۔ عورتوں نے ان چیخوں کو نظر انداز کر دیا۔ صرف میرینا کی توجہ اس طرف رہی کیونکہ اسے کچھ آدمیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نگران تھی۔ اس نے کپڑے پہنے اور اس طرف چلی گئی جدھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ کوچوان پاگل سے ایک آدمی کو گھسیٹ اور دھکیل رہے ہیں اور وہ عجیب طرح سے چیخ رہا ہے۔ وہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا تھا جو اس ممنوع علاقے میں آ گیا تھا۔ اس نے میرینا کی طرف دیکھا تو کہکا لگایا۔ وہ آ گئی ملکہ، اس نے بلند آواز سے کہا۔ وہ اس کی طرف دوڑ پڑا۔ کوچوان اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ اتنا تیز نکلا کہ میرینا تک پہنچ گیا اور اس کے قدموں میں سجدے میں گر پڑا۔ میرینا 1-2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرینا، اس نے سر اٹھا کر کہا، میں اپاس ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں۔ کوچوان آ چکے تھے اور اسے پکڑ کر گھسیٹنے لگے تھے۔ رہنے دو اسے، میرینا نے کہا، بیچارہ پاگل ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، تم لوگ جاؤ۔ میں پاگل نہیں ملکہ، اپاس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، فریادی ہوں، مظلوم ہوں۔ وہ اس وٹیزا کا بھائی اپاس تھا جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کرائی اور اسے قتل کر کے خود تحت نشین ہو گیا تھا۔ اس وقت اپاس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اپاس کی قومیت گوت تھی۔ وٹیزا آخری گوت بادشاہ تھا۔ میرینا ایک یہودی تاجر کی بیٹی تھی۔ وٹیزا کے دور حکومت میں اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اپاس نے اسے کہیں دیکھا اور دل دے بیٹھا، لیکن میرینا اس کی محبت کو قبول کرنے سے ڈرتی تھی۔ اس دھوکے کو محبت کیوں کہتے ہو؟ میرینا نے اپاس سے کہا تھا، یہودی ہوتے ہوئے نہ جانے میں اب تک شاہی خاندان سے کیوں بچی ہوئی ہوں۔ تم اپنے غلاموں کو حکم دو، وہ مجھے زبردستی اٹھا کر تمہاری خواب گاہ میں پہنچا دیں گے۔ تم شہزادے ہو،
बादशाह के भाई हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम शाही खानदान से क्यों बची हुई हो? उपास ने कहा, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे भाई ने तहत नशीन होते ही हुक्म जारी कर दिया था कि यहूदियों की लड़कियों को जबरदस्ती किसी गिरजे या शाही खानदान के किसी फर्द के हवाले करना संगीन जुर्म है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को इबरतनाक सजा दी जाएगी। मैं तुम्हें इसलिए शाही महल में नहीं ले जाऊंगा कि मैं बादशाह का भाई हूँ और तुम राया हो। मैं तुम्हें उस रोज महल में ले जाऊंगा जिस रोज गिरजे में तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। मुझे तुमसे मोहब्बत है मरीना, मैं तुम्हें महल से बाहर कहीं दूर मिला करूंगा। मरीना के दिल में भी उपास की मोहब्बत पैदा हो गई थी। उसके बाद वो महल से बाहर कहीं मिलते मिलाते रहे। एक रोज उपास के भाई वटीजा को उनकी मुलाकात का पता चल गया। क्या तुम्हारे दिल से ये एहसास निकल गया है कि तुम शाही खानदान के फर्द हो? वटीजा ने उपास से जवाब तलबी की। ये लड़की कौन है जिसे तुम आम आदमियों की तरह मिलते हो? ये लड़की कौन है जिसे तुम आम आदमियों की तरह मिलते मिलाते हो? यहूदी है, उपास ने जवाब दिया। तुम्हारा ताल्लुक जिस्मानी नहीं, मैं जब इससे मिलता हूँ तो मैं बादशाह का भाई नहीं होता। तुम सिर्फ उस लड़की से मिलोगे जिसके साथ हम तुम्हारी शादी करेंगे, वटीजा ने कहा। और तुम जानते हो वो लड़की कौन है? मैं इस लड़की से नहीं मिलूंगा जिसके साथ आप मेरी शादी करेंगे, उपास ने कहा। मैं इस यहूदी लड़की के साथ शादी करूंगा, फिर तुम इस तख्तो ताज से महरूम रहोगे, वटीजा ने कहा। तुम शायद भूल गए हो कि मेरे बाद इस तख्त पर तुमने बैठना है। तुम्हारी मलका गोत खानदान से होगी, वो राया में से नहीं होगी, वो यहूदी नहीं होगी। मैं तहत और ताज से दस्तबरदार हो जाऊंगा, उपास ने कहा। मरीना से बेवफाई नहीं करूंगा। अपने बड़े भाई के साथ उपास की तलह कलामी हुई थी। वटीजा बड़ा भाई था और बादशाह भी। उसने अपनी इन दोनों हैसियतों में उपास को हुक्म दिया कि वो मरीना से नहीं मिल सकता, अगर मिलेगा तो उसे कैद में डाल दिया जाएगा। उपास ने इस धमकी की भी परवाह न की और भाई को आखिरी फैसला सुना दिया कि वो मरीना से बेवफाई नहीं करेगा। उपास को 2-4 दिनों बाद मरीना ने एक मुलाकात में बताया कि वटीजा के एक एलची ने उसके बाप को कहा है कि अपनी बेटी को शाही खानदान के किसी भी आदमी से मिलने दे। उस हुक्म में ये शामिल था कि मरीना की शादी जल्दी कर दी जाए। वटीजा बादशाह था, वो इस यहूदी लड़की को गायब करवा सकता था, लेकिन वटीजा रहमदिल बादशाह और हर इंसान को उसके हकूक देने का कायल था। उसने अपनी फितरत के खिलाफ कोई कार्रवाई पसंद न की। मरीना को उसके बाप ने घर में बंद कर दिया, लेकिन उपास रात को उसके घर पहुंच जाता। मरीना को उसके बाप ने घर में बंद कर दिया, लेकिन उपास रात को उसके घर पहुंच जाता। मरीना की शादी एक आदमी से तय कर दी गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वटीजा ने मरीना पर तो कोई सख्ती न की, न उसके बाप को सरजनश की। इसकी बजाय उसने उपास को बड़ी सहज सजाएं दी, लेकिन उपास मरीना से मिलने से बाज न आया। एक बार उपास और मरीना भाग निकले, लेकिन रास्ते में ही पकड़े गए। वटीजा ने उपास पर पहरा खड़ा कर दिया। इसके लिए हुक्म था कि महल से बाहर नहीं जा सकता। उपास अपने बादशाह भाई के लिए और मरीना अपने बाप के लिए एक टेढ़ा मसला बने रहे। इनकी मोहब्बत की दास्तान तुलिता में मशहूर हो गई और 2 साल गुजर गए। एक रोज अचानक शाही महल में खलबली मच गई। इतला आई थी कि फौज ने बगावत कर दी है और बगावत की क़यादत फौज का कमांडर राडर कर रहा है। वटीजा ने अपने मुहाफिज दस्ते को और तुलिता में जो फौज थी उसे भी साथ लिया और बागियों की सरकूबी के लिए चला गया। वो इस जाम में गया था कि जाते ही बागियों का कला कमा कर देगा, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। उसे मालूम नहीं था कि उसके खिलाफ फौज और गिरजों में भी प्रोपेगेंडा किया गया था कि वो अपने मुल्क का वफादार नहीं, वो किसी दूसरे मुल्क के बादशाह के साथ मुल्क का सौदा कर रहा है। पहले बयान हो चुका है कि वटीजा इंसान दोस्त बादशाह था और उसने यहूदियों को बाइज्जत जिंदगी बसर करने का हक दे दिया था। इस वजह से फौज के अफसर, जागीरदार, उमरा और वुज़रा इससे नाराज हो गए थे। पादरी तो उसके और ही ज्यादा खिलाफ हो गए थे। पादरियों को यहूदियों की खूबसूरत लड़कियां मिला करती थीं। वटीजा ने यह सिलसिला रोक दिया था। जागीरदार और मजहबी पेशवा जिसके खिलाफ हो जाएं, उसका इक़्तिदार में रहना मुहाल हो जाता है। वटीजा की बादशाही ऐसे ही हालात का शिकार हो गई। वो जो फौज तुलिता से लेकर निकला था उसे वो अपनी वफादार फौज समझता था, लेकिन बागियों के सामने जाकर ये फौज धोखा दे गई और बागियों से जा मिली। वटीजा राडरक के हाथ लगा और कत्ल हो गया। उसके खानदान के कुछ अफराद बच निकलने में कामयाब हो गए और समुंदर पार सियुस्ता पहुंच गए, जहां जोलियन ने उन्हें पनाह दी। जोलियन वटीजा का दामाद था, वरना उन्हें यहाँ भी पनाह न मिलती, क्योंकि जोलियन उंदलस का बाजगुजार था। कमोबेश 20 साल बाद उबास और मरीना एक दूसरे को देख रहे थे। मरीना के कहने पर कोचवान अपनी अपनी बगियों के पास चले गए और मरीना उपास को वहां से टेकरी की ओट में ले गई। उनकी मुलाकात बहुत ही जज्बाती थी। कुछ देर तो उनके आंसू एक दूसरे को अपना अपना हाले दिल सुनाते रहे। दोनों के जिस्म तो जैसे एक हो गए थे। तुम्हें कैसे मालूम हो गया था कि मैं तुलिता में मौजूद हूँ?
मरीना ने उपास से पूछा। ये तो कई सालों से मुझे मालूम है, उपास ने जवाब दिया। जोलियन के आदमी यहाँ आते जाते रहते हैं। इनमें से किसी ने मुझे बताया कि जिस मरीना की खातिर तुमने अपने भाई को नाराज किया और तख्तो ताज से दस्तबरदार हो गए थे, वो मरीना रॉड्रिक के हरम में है। इसके बाद भी मुझे तुम्हारे मुतल्लिक पता चलता रहा। हमें यहाँ ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए मरीना, ये हम दोनों के लिए खतरनाक है। हाँ उपास, मरीना ने कहा, हमें जल्दी इधर उधर हो जाना चाहिए। तुम तजुर्बाकार जासूस मालूम होते हो कि तुम्हें ये भी मालूम हो गया है कि मैं इस वक्त जेल पर होंगी। मैं नहीं, उपास ने कहा, मुझे यहाँ तजुर्बाकार जासूस मिल गए हैं। अपनी फौज के 2 गोत मिल गए थे। एक तो उन्होंने ये बताया कि तुम अभी तक महल में मौजूद हो और दूसरी तीसरी शाम महल की औरतों के साथ जेल पर आना तुम्हारा मामूल है। मैं बरसों से इस बेस में जंगल में मारा मारा फिर रहा हूँ। आज मेरे जासूस ने मुझे बताया कि तुम औरतों के साथ जेल पर जा रही हो। इंतकाम का वक्त आ गया है मरीना। मैंने रॉड्रिक से जो इंतकाम लेना है वो तुम जानती हो, और तुमने भी तो इससे इंतकाम लेना है। उसने तुम्हें जवानी में अपनी दाश्ता बनाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने तो शादी कर ली थी, बच्चे भी हैं। हाँ उपास, मरीना ने आप बार कर कहा, मैंने भी इंतकाम लेना है। मैं तुम्हारी नहीं तो किसी और की भी बीवी ना बन सकी, माँ ना बन सकी। इसकी बजाय मैं शैतान बन गई। मुझ में शैतानी हसलतें पैदा हो गईं और मैंने आदमियों को और हरम की औरतों को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। महल के लोग, अफसर और मुलाजम, अमीर और वजीर मुझे बेताज मलका कहने लगे। बात लंबी हो रही है मरीना, उपास ने कहा। तुम्हारी तरह इस वक्त मैं भी जज्बात से मगलूब हुआ जा रहा हूँ। दिल कहता है कि 20 साल पहले की बातें करें, जमाना 20 साल पीछे चला जाए और मैं तुम्हें वो ख्वाब सुनाऊं जो तुम्हारी जुदाई मुझे दिखाती रही है। मरीना ने कहा, तुम्हें देखकर मेरे जज्बात बेकाबू हो गए हैं। इस वक्त जज्बात को काबू में रखो मरीना, उपास ने कहा। मैं कह रहा हूँ कि इंतकाम का वक्त आ गया है। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम हमला आवरों के साथ आए हो। मरीना ने कहा, ये कौन है? बर्बर, उपास ने कहा। बर्बर मुसलमान। उपास ने उसे तफसील से बताया कि मुसलमानों को जोलियन ने किस तरह हमले के लिए तैयार किया था। फिर उसने कहा, उदलस की फौज में गोथ भी हैं और यहूदी भी। क्या तुम ये काम कर सकती हो कि जब रॉड्रिक और मुसलमानों की फौजें आमने सामने आएं तो गोथ और यहूदी मुसलमानों से जा मिलें? कर सकती हूँ, मरीना ने कहा। ऐसा ही होगा। इस मामले में ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। और कोई खबर दे सकती हो? हाँ, मरीना ने जवाब दिया। शाह रॉड्रिक पंपलूना में है और फौज इकट्ठी कर रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि फौज में शामिल हो जाएं। मुसलमानों की फौज की तादाद कितनी है? 7000, उपास ने जवाब दिया। अब कुछ कम है, पहली लड़ाई में कुछ मारे भी गए हैं। ओ, मरीना ने कहा, ये तो बहुत कम तादाद है। मुसलमान पिट जाएंगे। अपने जर्नैल थियोडोमीर से पूछना, उपास ने मुस्कुराकर कहा। इन मुसलमानों को लड़ता देखो तो हैरान रह जाओ। ये लोग कुफर के खिलाफ लड़ने को जिहाद कहते हैं, जिसके मानी है मुकद्दस जंग। मुसलमान जिहाद को इबादत का दर्जा देते हैं और इस इबादत में अपनी जानें देते हैं। रूहानी खुशी महसूस करते हैं, लेकिन ये लोग अंधाधुंध जाने नहीं देते। पहले तो ये अपने दुश्मन के लिए मौत के फरिश्ते बन जाते हैं। चूंकि मौत का खौफ उनके दिलों में होता ही नहीं, इसलिए ये न डर होकर दुश्मन की सफों में घुस जाते हैं। उनके जर्नैल ऐसी चालें चलते हैं जो उनका दुश्मन उस वक्त समझता है जब उसकी कमर टूट चुकी होती है। मेरी आंखों के सामने मुसलमानों की 7000 फौज ने थियोडोमीर की 15000 फौज का जो हाल किया है वो तुम सुन चुकी हो। ये सोच लो उपास, मरीना ने कहा। रॉड्रिक जो फौज इकट्ठी कर रहा है वो 1 लाख से कम नहीं होगी। ये सोच हम तक रहने दो मरीना, उपास ने कहा। अगर अभी तक मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है तो मैंने जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया है तुम वो कर दो। हो जाएगा, मरीना ने कहा। तुम पागलों की सी हरकतें करते हुए यहाँ से गायब हो जाओ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, उपास ने कहा और वहाँ से चला गया।